آداب عرض ہے اردو خبرنامہ MCN میں میں ذکی صدیقی آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین، پیش ہیں آج کی اہم خبریں۔ ان خبروں کے اسپانسر ہیں گھر کل مسالے، روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ، گھر کل مسالے۔ ہم وطن بھائیوں میں اسلام سے متعلق پیدا شدہ غلط فہمیاں دور کرنے کے لیے بندگان توحید قرآن و احادیث کی روشنی میں گزاریں اپنی زندگیاں۔ شاہگنج علاقے میں موجود مدینہ مارکیٹ کے پارکنگ شیڈ میں تعمیر کی گئی دکانیں کی گئی منہدم، بامبے ہائی کورٹ کے حکم اور میونسپل کمشنر کی ہدایت پر کی گئی کارروائی۔ تاریخی سلیم علی تالاب میں چھوڑے جا رہے ڈرینیج کے غلیظ پانی سے تالاب کا وجود خطرے میں، گندگی کے سبب مچھلیوں کو بھی پہنچ رہا ہے نقصان۔ اور شیندرا MIDC روڈ پر پیش آیا دلخراش حادثہ، ایک تیز رفتار کار کی زد میں موٹر سائیکل آ جانے کے سبب ضعیف خاتون کی جگہ پر ہی موت واقع۔ اب خبریں تفصیل سے۔ جماعت اسلامی ہند اورنگ آباد کی جانب سے ایک جلسہ عام بعنوان بن جاؤ اللہ کے مددگار گزشتہ شام امپیریل لانس میں منعقد کیا گیا۔ واضح رہے کہ جماعت اسلامی ہند مہاراشٹر کی جانب سے ریاستی سطح پر ایک مہم بن جاؤ اللہ کے مددگار کے عنوان سے شروع کی گئی ہے، جس کے تحت ایک جلسہ عام ناظم شہر انجینئر واجد قادری کی صدارت میں گزشتہ شام امپیریل لانس میں رکھا گیا۔ اس اجلاس میں کیرالہ سے آئے SIO کے سابق قومی صدر سہیل کے، جماعت اسلامی ہند اورنگ آباد کے صدر ڈاکٹر شاداب موسیٰ، اورنگ آباد جنوب کے صدر سلمان مکرم اور اورنگ آباد شمال کے صدر عابد علی عابدی مہمانان خصوصی کی حیثیت سے شریک تھے۔ اس موقع پر حاضرین کی رہنمائی کر آج جانے یا انجانے میں ہمارے ہم وطن بھائیوں میں اسلام کے تئیں کئی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، اور وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نام کے مسلمان بن کر رہ گئے ہیں۔ ہم لوگ اپنی ہی زندگی قرآن و حدیث کی روشنی میں نہیں گزارتے اور صبح سے شام تک ان گنت غلطیاں ہم سے سرزد ہو رہی ہیں جو مذہبی تعلیمات کی عکاس ہرگز نہیں ہو سکتی، لیکن ہم وطن بھائی ہمارے رہن سہن کو دیکھ کر اسے ہی اسلام سمجھنے لگے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اسلام سے دوری بنائے رہتے ہیں۔ لہٰذا سب سے پہلے ہمیں اپنی اصلاح کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں تو ہمیں علیحدہ سے دعوت دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ ہمارے ہم وطن اسلام سے قریب ہونے لگیں گے۔ اسی طرح سے دیگر مقررین نے بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں حاضرین کی رہنمائی کی اور انہیں بن جاؤ اللہ کے مددگار کے عنوان سے شروع کی گئی تحریک کے اغراض و مقاصد سے واقف کروایا۔ جو آنکھ کی روشنی ہے وہی ہے جو یہاں کھڑا ہوتے وقت جو ہمیں انرجی مل رہا ہے کچھ چیز آپ سے شیئر کرنے کا۔ میں دیکھ رہا تھا سب لوگ بہت غور سے جو ہے چیزوں کو آبزرو کر رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ یہی ہے کہ اس پچھلے 20 سال میں پورا دنیا میں ایک طرح سے نفرت پھیلا ہوا ہے اور آپس میں بغاوت کرنا، نفرت کا ایک راجنیتی پورا دنیا میں خاص طور پر میجر ڈیموکریسیز میں انکلوڈنگ انڈیا چل رہا ہے۔ اس کا جو اس وقت میں خاص طور پر اینٹی مسلم پروپیگنڈا کے طور پر ہی دنیا بھر جو چل رہا ہے، اس میں مسلمان کا کیا جو ہے اینٹی ڈاٹ ہونا چاہیے، ہمارا کیا عمل ہونا چاہیے۔ اس میں یہی بتایا کہ جو آپ اگر دفاع اچھائی کے ساتھ کریں گے تو آپ کا سب سے بڑا جو دشمن ہے آپ کا خاص دوست بن جائے گا۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی ویژن کی بات کی، میرا ویژن میں کیا کرنا چاہتا ہوں، میں کیسے جو تو اس کے ٹیکل کروں، میں اپنے آپ کو کیسے لگاؤں اس میں۔ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، ایک ایک فرد کو۔ تو یہ ہم چاہتے ہیں، جماعت کی پکار کون انصار اللہ کے حوالے سے یہی پکار ہے کہ آپ آئیے، آپ آئیں گے تو اپنی صلاحیتوں کے ساتھ جب آپ آئیں گے۔ شاہگنج علاقے میں موجود مدینہ مارکیٹ کے پارکنگ شیڈ میں بنائی گئی دکانیں میونسپل کارپوریشن کے غیر قانونی قبضہ جات ہٹاؤ دستے نے مسمار کر دیں۔ یہ کارروائی میونسپل ایڈمنسٹریٹر آستک کمار پانڈے کی ہدایت پر ایڈیشنل میونسپل کمشنر رویندر نکم کی رہنمائی میں انجام دی گئی۔ میونسپل ذرائع کے مطابق کچھ دکانداروں نے مدینہ مارکیٹ کے پارکنگ شیڈ پر قبضہ کر کے وہاں دکانیں تعمیر کر لی تھیں، لہٰذا شکایت کنندہ نے اس سے متعلق کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ اس طرح میونسپل کارپوریشن سے بھی شکایت کی تھی۔ مقدمے کی سماعت کے بعد فاضل عدالت نے پارکنگ شیڈ میں تعمیر کردہ دکانیں منہدم کرنے کا حکم میونسپل انتظامیہ کو دیا، جس پر
म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एडिशनल कमिश्नर रविंद्र निक्कम की रहनुमाई में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सविता सोनो ने और RS राचतवार की निगरानी में बिल्डिंग इंस्पेक्टर सैयद जमशेद, बीबी गौली, सैयद मजहर अली, RM सुरासे, सैयद अफजल, RD राजपूत और गैर कानूनी कब्ज़ाजात हटाओ दस्ते में शामिल दीगर मुलाजिमीन ने कार्रवाई करते हुए पार्किंग शेड में तामीर की गई दुकानें मुनहदिम कर दी। जेथे मदीना मार्केट येथे पार्किंगच्या जागेवर अनधिकृतपणे दुकानांचे बांधकाम करण्यात आले होते। त्यांना वारंवार सूचना देण्यात आली होती। जी माननीय आयुक्त महोदय तसंच माननीय अतिरिक्त आयुक्त निकम साहेब यांच्या आदेशाने येथील दुकानांच्या अनधिकृत बांधकाम हे निष्कासित करण्यात येत आहे। तारीखी सलीम अली तालाब में छोड़ा जा रहा ड्रेनेज का पानी फौरी रोका जाए, ये हिदायत बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने म्यूनिसिपल इंतजामिया को दी है। इसके बावजूद मुताल्लिका इंतजामिया ने ज़िमन में अब तक कोई कदम नहीं उठाया, जिसके सबब यहाँ का पानी आलूदा हो गया है और अतराफ के साकिनान की सेहत को भी खतरा लाहक है। लिहाजा इस जानिब तवज्जो का मुतालबा इलाके के साकिनान कर रहे हैं। नाजरीन, दिल्ली गेट और मजनू हिल के दरमियानी हिस्से में मौजूद तारीखी सलीम अली तालाब मुताल्लिका इंतजामिया की लापरवाही के सबब अपनी खूबसूरती खोने लगा है। हालांकि इस तालाब की खूबसूरती और उसमें उगने वाले कंवल के फूलों के सबब एक जमाने में गैर मुल्की परिंदे दूर दराज का सफर करके यहाँ बसेरा किया करते थे। ये तालाब 1610 ता 1616 के दरमियान शहर औरंगाबाद के मेमार मलिक अंबर ने तामीर करवाया था। इसके बाद औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के दौरे हुकूमत में शहरियान की तफरीह के लिए हिमायत बाग कायम किया गया था। सदियों तक इस तालाब में कंवल के फूल उगते रहे और पानी पर कंवल की चादर एक खूबसूरत नज़ारा पेश करती रही। लेकिन साल 1990 के बाद मुताल्लिका इंतज़ामिया की लापरवाहियों के सबब अतराफ की बस्तियों से निकलने वाला ड्रेनेज का गलीज पानी इस तालाब में छोड़ा जाने लगा, जिसकी वजह से यहाँ का पानी आलूदा हो गया और कंवल के पौधे ज़ाये हो गए। गैर मुल्की परिंदों ने भी यहाँ आना छोड़ दिया। साल 2010 में AMC इंतज़ामिया ने तालाब से मुत्तसिल ज़मीन पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तामीर करवाया, जिस पर लगभग 3 करोड़ रुपये खर्च किए गए और गुज़िश्ता 10-12 सालों से इस ट्रीटमेंट प्लांट से निकलने वाला पानी इस तालाब में छोड़ा जाने लगा। STP प्लांट से निकलने वाला पानी भी कितना साफ और शफाफ है, इसकी जांच करवाने मुताल्लिका इंतजामिया तैयार ही नहीं है। तालाब का पानी आलूदा हो जाने के सबब इसमें मौजूद मछलियों के मरने के वाक़यात इससे कबल भी मंजर आम पर आ चुके हैं। इसके बावजूद म्यूनिसिपल अफसरान की आँख नहीं खुलती। अब तो इसमें शामिल होने वाले ड्रेनेज आमेज पानी के सबब तालाब का पानी हरा हो गया है और इससे ताफुन फूट पड़ा है, जिसकी वजह से अतराफ में आबाद बस्तियों के साकिनान की सेहत को भी खतरा लाहक हो गया है और मुताल्लिका इंतजामिया से तवज्जो का मुतालबा कर रहे हैं। मलिका बेगम बोर्डी, यहाँ पे ये टेनिस की बहुत प्रॉब्लम चालू है। यहाँ पे बहुत बदबू बहुत आती है और तबीयत ख़राब होने के वो अंदेशा रहता। और ये छोटे छोटे बच्चे हमारे, इनको भी तकलीफ होती है, बुखार वो आ रहा। हे डेंगूचा खूप त्रास आहे आम्हाला। खूप म्हणजे खूपच मच्छर होत आहे, वास पुन्हा त्याच्यामध्ये काही स्वयंपाक केला तर ते जेवण जात नाही आहे। एक 15 दिवसांनी हे चालू आहे आणि मग ते पाणी पण पूर्ण ते विहिरीचं तळ्यामध्ये जातं, त्यात मासे आहेत, त्याचा पण ते आता त्या जनावराला पण त्रास आहे, ते म्हशी बसतात, पुन्हा मग येता जाता आम्हाला ते हातापायाखाली ते पाणी पूर्ण खूप म्हणजे खूपच त्रास आहे। आता सध्या तर एकदम आम्हाला नाक पण जेवायला जात नहीं। कदीम औरंगपुरा मंडी की जगह पर मॉल की तामीर के लिए खोदे गए 20 फीट गहरे गड्ढे में बारिश का पानी जमा हो जाने के सबब ये गड्ढा हादसात की आमाजगाह बन गया है, मगर मुताल्लिका इंतजामिया इस जानिब तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं है। ये इल्ज़ाम इलाके के ताजिरों ने लगाया है। नाजरीन, AMC इंतजामिया ने साल 2012 में औरंगपुरा इलाके में मौजूद कदीम भाजी मंडी तोड़कर वहां आलीशान शॉपिंग मॉल बनाने का मंसूबा बनाया, जिसके तहत वहां कारोबार करने वाले सब्जी फरोशों को ताकत के बल पर हटाकर यहां के ओटे और दुकानें साल 2012 में तोड़ दी गयी, जिसके बाद ये मामला अदालत में जा पहुंचा। फाजिल अदालत के हुक्म पर म्यूनिसिपल इंतजामिया ने इन सब्जी फरोशों को इस रोड पर आर्जी मंडी कायम करने की इजाजत दी और कोर्ट में यह हल्फनामा भी दाखिल किया था कि अंदरून 18 माह वहाँ शॉपिंग मॉल का काम मुकम्मल करके सब्जी फरोशों को दोबारा इस जगह मुंतकिल कर दिया जाएगा। जिसके बाद BOT तर्ज पर मॉल की तामीर के लिए एजेंसी मुकर्रर की गई, मगर एक लंबा अरसा गुजर जाने के बाद भी अब तक ये प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हो पाया, बल्कि यूँ कहिए कि मॉल का तामीरी काम
नामालूम वजूहात के सबब गुज़िश्ता कई माह से बंद पड़ा है और तामीर के लिए खोदा गया 20 फीट गहरा गड्ढा अतराफ के साकिनान और ताजिरों व फल फरोशों के लिए वबाल जान बना हुआ है। अब तो इस गड्ढे में बारिश का पानी भी जमा हो गया है और उसने छोटी सी झील की शक्ल इख्तियार कर ली है। इस गड्ढे के अतराफ न तो हिफाजती दीवार है और न ही टीन शेड लगाकर उसे बंद किया गया है, जिसकी वजह से शौकीन अफराद यहाँ मछली पकड़ने के लिए भी आने लगे हैं। अगर इस दौरान कोई पानी में गिर जाता है तो उसकी जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। दूसरा ये कि इस पानी पर काई भी जम गई है और डेंगू, मलेरिया व इस जैसे दीगर वबाई अमराज फैलाने वाले मच्छरों की यहाँ बहुतात है, मगर मुताल्लिक़ा इंतजामिया की जानिब कोई तवज्जो नहीं है। शायद म्यूनसिपल अफसरान को यहाँ किसी बड़े हादसे का इंतज़ार हो, जिसके बाद ही वो ख्वाब गफलत से बेदार होंगे। यहाँ हाथ गाड़ियों पर फल फरोख्त करने वाले ताजिरों का कहना है कि ये जमाशुदा पानी और इसकी गंदगी के सबब ताफुन फूट पड़ा है और न सिर्फ उनकी सेहत को खतरा लाहक है बल्कि उनके कारोबार भी मुतासिर हो रहे हैं। चार लोग आए, बात भी कर रहे हैं, पानी का मसला है तो जान का भी खतरा है और दूसरी बार गिरेगी भी नहीं आती, कुछ भी नहीं होता है। पानी की वजह से मच्छर आती है, बुखार भी आ रहा, कुछ भी हो जा रहा सर। तो दूसरी बात ये पानी भी कितना भरे वाला है, एक बार आदमी चले गए और दूसरी बार आने की उम्मीद भी नहीं रहेगी सारी इसकी। तो वही बोलना है बस अपना कि यहाँ आके कारपोरेशन वालों ने देखना वो पानी का निकालने का काम चालू करना। जो पानी थोड़ा बहुत नहीं है वो बहुत ज़्यादा पानी है। यहाँ पे पूरी गाड़ियाँ लगी हुई है, जितनी भी गाड़ियाँ यहाँ तक लगी हुई है, तो जब तक की तो सेफ है सब मामला। अगर से गाड़ियाँ हट गई कोई गिर गया बच्चा, पहले इतने बच्चे आते हैं यहाँ के नाले वाली बात के सब वहाँ पतंग मछलियाँ पकड़ने को भी आ रहे हैं। अगर से कोई गिर गया बच्चा तो हंसता ना हो जाए। अच्छा, ये 20 से 25 फीट पानी है यहाँ, जो है मच्छर बहुत हो रहा है, आने के से पूरा उबल के आ रहा है। यहाँ तकलीफ है, यहाँ आने वाले मच्छर ये वो सबको तकलीफ है यहाँ पर इससे। ताल्लुका सिल्लोड़ के अंधारी सर्कल में रियासती वजीर ममलिकत अब्दुल सत्तार के हाथों मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा गया। सिल्लोड़ सोएगांव हल्के के रुकन असम्बली और रियासती वजीर ममलिकत अब्दुल सत्तार के हाथों अंधारी सर्कल, पलसी, उपली, मांडगांव, लोनवाड़ी, मसला व दीगर मकामात पर कई तरक्याती कामों के इफ्तिताह अमल में आए। साथ ही कई मकामात पर शिवसेना की शाखाएं भी कायम की गईं। अंधारी गाँव की स्मशान भूमि की तज़ीनकारी व तहफ़्फ़ुज़, अंधारी मसला के दरमियानी पुल और पलसी अंधारी के दरमियानी पुल की तजदीद व मरम्मत कारी के कामों के भूमि पूजन किए गए। अंधारी में शिवसेना व युवा सेना की शाखाएं और महिला आघाड़ी की शाख कायम की गई। इस मौके पर महिला आघाड़ी के बोर्ड की नकाब कुशाई आघाड़ी की शहर प्रमुख मेघाताई शाह और ताल्लुका प्रमुख दीपाली शाह के हाथों, जबकि युवा सेना के बोर्ड की नकाब कुशाई युवा सेना ताल्लुका प्रमुख धैर्यशील तायडे के हाथों अमल में आई। इस मौके पर जिला परिषद के साबिक सदर केशवराव तायडे, लक्ष्मण अन्ना तायडे, कैलाश सोनोने, लक्ष्मण गोरे, आरिफ कुरैशी, अजीम कुरैशी, नजम सेठ व दीगर कसीर तादाद कारकुनान मर्द व खवातीन मौजूद थे। मरकजी हुकूमत ने इस साल आज़ादी का अमृत उत्सव मनाने का ऐलान किया है, जिसके तहत शहर में मौजूद पानी की टांकियों को रंगो रोगन किया जाएगा। इसी तरह शहर को खूबसूरत बनाने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद किए जाएंगे। ये इत्तला स्मार्ट सिटी की किरण अडे ने दी है। हेलो, मैं किरण अडे हूँ। मैं स्मार्ट सिटी में काम कर रही हूँ और हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट से आज़ादी का अमृत महोत्सव ये एक उत्सव आया है, जहाँ पे हम हमारी आज़ादी के 75 साल सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसके लिए हमारे जगह जगह सिटी में जितने भी स्पॉट्स हैं उन स्पॉट्स को ब्यूटीफाई, कलरिंग, पेंटिंग का काम किया जा रहा है। इसमें हमने कुछ अपने सिटी में के जितने भी पानी की टांकियाँ हैं उन सबको कलरिंग का काम किया है, वो काम प्रस्ताव में है। इसके बाद खाम नदी के जो बैंक है उधर के भी बैंक का कलरिंग का काम भी हम ले रहे हैं। जितने भी हमारे जंक्शंस है उनमें से कुछ मेन जंक्शंस जो अभी फ़िलहाल अच्छी तरह से मार्क नहीं है उनको मार्क किया जाएगा, जिससे ट्रैफिक के सेफ्टी और ट्रैफिक फ्लो का रेगुलरिटी चेक किया जाएगा, वो अच्छे से होगा, मेंटेन होगा। तो इस प्रकल्प को अच्छे से सेलिब्रेट करने के लिए हम चाहते हैं कि जितने भी स्टेक होल्डर्स है, इंस्टीट्यूट्स है, जो भी संस्थाएं हैं वो अपना योगदान दीजिए। इसमें हम ये महोत्सव को बड़े से बड़े पैमाने पे सेलिब्रेट करना चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें सहभाग कीजिए, जिससे हम ये महोत्सव और भी खूबसूरत और अच्छा बनाएं और जो सिटी को एकदम खूबसूरत निखारे। सेन गांव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कारकुनान ने रियासती वजीर सेहत डॉक्टर राजेश टोपे का
शाया निशान इस्तकबाल किया है। गुज़िश्ता रोज वजीर मौसूफ ने जिला हिंगोली का दौरा किया। इस मौके पर बराह जिंतूर जब राजेश टोपे का काफिला गुजरा तो ताल्लुका सेनगांव के पार्टी कारकुनान और अहदेदारान ने टोपे का शानदार इस्तकबाल किया। इस मौके पर टोपे को कारकुनान ने एक मकतूब भी पेश किया जिसके जरिए मुतालबा किया गया कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर में मुलाजिमीन की अफरादी कुव्वत बढ़ाई जाए और आवाम के इस्तेफादे के लिए 2 एम्बुलेंस गाड़ियाँ फराहम की जाएं। इस मौके पर पार्टी के ताल्लुका सदर रवि गर्दे, उमेश देशमुख, कैलाश राव देशमुख, राजकुमार देशमुख, अनिल जी पतंगे, शिवाजी राव देशमुख, सहाफ़ी अनंता देशमुख व दीगर कारकुनान और मकामी साकुनान मौजूद थे। काबिल जिक्र है कि इन कारकुनान ने अपने रहनुमा और रियासती वजीर राजेश टोपे को 50 किलो फूलों का वजनी हार पहनाकर उनका इस्तकबाल किया। आलमी बाम्बू खेती दिन के मौके पर वाशी में बांस खेती वर्कशॉप मुनक्किद किया गया। इस वर्कशॉप से खिताब करते हुए साबिक रुकन असम्बली पाशा पटेल ने कहा कि दरख्तों का कत्ल करके इंसान अपनी खुद और सारी रुए ज़मीन की तबाही के सामान कर रहा है। ये वर्कशॉप यहाँ वाक़े अन्नपूर्णा मंगल कार्यालय में गुज़िश्ता रोज 18 सितंबर को मुनक़िद हुआ। इस वर्कशॉप में बांस के सनतकार संजय करपे, भाजपा के जिला नायब सदर सुरेश कौड़े, शेतकरी संगठना के ताल्लुका सदर दादा चेड़े, राष्ट्रवादी कांग्रेस के संतोष कौड़े, भारत मोलौने व दीगर मौजूद थे। साबिक रुकन असम्बली पाशा पटेल ने मजीद कहा कि आज भारत में कमोबेश 67 अजला ऐसे हैं जो इंतहाई कम या बारिश न होने के शिकार हैं। जमीन पर कार्बन की मिकदार बढ़ती जा रही है और माहौलियात के गैर मुतवाज़िन हो जाने के सबब खेती व काश्तकारी को ख़तरा लाहक है। इसलिए ज़रूरी है कि दरख्तों की आबियारी की जाए, उनकी परवरिश व पर्दाख्त की जाए। इसी तरह गन्ने के मुकाबले में कम खर्च पर बाम्बू की खेती की जा सकती है। इस जानिब भी पाशा पटेल ने किसानों की तवज्जो मबजूल करवाई और कहा कि 100 साल तक फी एकड़ 50 टन बाम्बू की पैदावार होती है और ये पैदावार फर्नीचर, तामीरात, पारचा बाफी और स्टेशनरी वो जूते चप्पल समेत कई सनतों में कारगर साबित होती है। इसकी पैदावार के तई अब भारत में भी बेदारी पैदा हो रही है और अहम बात तो ये भी है कि मुस्तकबिल में बांस की मांग में मज़ीद इजाफा ही होगा। इस वर्कशॉप में स्लाइड शो के ज़रिए भी मालूमात फराहम की गई। कोविड के दौरानिये में मुलाजमत पर रखे गए डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की 5 माह की तनख्वाहें फौरी अदा की जाएँ। इस तरह का मुतालबा करते हुए मुताल्लिका बरतरफ शुदा मुलाजिमीन ने डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर से मुलाकात की और उन्हें एक मेमोरेंडम पेश किया। उन लोगों का कहना है कि कोरोना पर काबू पाने के लिए एएमसी इंतजामिया ने कोविड केयर सेंटर्स और वैक्सीनेशन सेंटर्स पर डाटा एंट्रीज के लिए 120 मुलाजिमीन के आर्जी तकर्रुरात किए थे जिन्हें इस माह बरतरफ कर दिया गया, लेकिन मुताल्लिका कॉन्ट्रैक्टर ने उन लोगों की 5 माह की तनख्वाह अदा नहीं की। हालांकि जिस वक्त इन मुलाजिमीन को बरतरफ किया गया था, म्यूनसिपल अफसरान ने उन्हें तयक्कुन दिया था कि उनकी तनख्वाहों के बकाये अंदरूने 1 हफ्ता अदा कर दिए जाएंगे, मगर 20 दिन का लंबा अरसा गुजर जाने के बाद भी उन्हें तनख्वाहों के बकाये अदा नहीं किए गए। लिहाजा इन बरतरफ शुदा मुलाजिमीन के एक वफद ने प्रहार जनशक्ति के राजू मिसाड़ की रहनुमाई में आज डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर से मुलाकात की और उन्हें मेमोरेंडम देते हुए मुतालबा किया कि उनकी तनख्वाहों के बकाये फौरी अदा किए जाएं। मैं राजू मिसाळ, प्रहार जनशक्ती पक्षाचा महानगर महासचिव औरंगाबाद तथा बहुजन कामगार शक्ती महासंघाचा शहर अध्यक्ष, कामगार संघटना आपली इथं चालते त्याचा या गेल्या मागच्या दुसऱ्या लाटमध्ये औरंगाबाद महानगरपालिकेने कोविडच्या लाटेसाठी डाटा ऑपरेटर गॅलेक्सी मल्टी सर्व्हिसेस यांच्या मार्फत घेतले होते। यांना 5/4/2021 या लोकांना नियुक्त करण्यात आलं। त्यानंतर 31/8/2021 कोविडची दुसरी लाट संपल्यामुळं या लोकांना कामं एकदम कमी करण्यात आलं। बरं, कमी करण्यात आलं तर हे 5 महिने झाले तर 5 महिन्याचा पगार दिला नाही। आणि दुसरी गोष्ट, हे ज्यावेळेस आयुक्तांना भेटले, आयुक्तांनी 15 दिवसाचा यांना टाईम दिला होता, तेव्हा 15 दिवसात तुमची पगार मिळाला। तर 15 दिवसात त्यावेळेस आम्ही उपायुक्त कामगार आपले टेंगडे साहेब महानगरपालिकेचे यांच्याशी चर्चा केली, यांना किमान वेतनानुसार त्यांचा पगार करावा असं आम्ही त्यांना सूचित केलं होतं। त्यांना त्यावेळेस GR वगैरे सर्व काही दाखवले, दिले पण। तर हा त्यांचा किमान वेतन 20,000 मिळतो। आणि आज 15 दिवस झाल्यानंतर आज आम्ही टेंगडे सरांना भेटलो, त्यांनी म्हणे जिल्हा तुमचं फुटअप केलेलं आहे, आणि ती कधी होईल काय होईल पगार हे सांगता नाही येत। मग आम्ही विचारलं त्यांना की बाबा एक साथ पूर्ण 5 महिन्याची करता का 1 महिन्याची का कितीनी करणार? तर त्यांनी गॅलेक्सी एजन्सीचा जो कर्मचारी आहे, जो महानगर गॅलेक्सी एजन्सीकडून जो डाटा ऑपरेटर लागलेला वार रूममध्ये हेमंत राठोड म्हणून हा मुलगा आहे, या मुलाला फोन करून बोलवलं। मी त्यांना म्हटलं मालकाशी संपर्क करा, मालकाशी बोला आणि मालकाच्या माध्यमातून हे करा। तो मुलानं आम्हाला उलटं सुलटं उत्तर दिले कामगार उपायुक्तासमोर की तुम्हाला त्याची काय आवश्यकता आहे, आम्ही 9,500 पगार करणार। तर अशा प्रकारे महानगरपालिकेचं आमच्या लक्षात आलं की महानगरपालिकेचं ठेकेदारांचं आत्मनिर्भरपणाचे एक तालिबा से काबिल एतराज़ गुफ्तगू के पयामात भिजवाने की शिकायत
उसने पुलिस में दर्ज करवाई थी, जिसके बरबिना डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के PRO शिंदे को आखिरकार खिदमात से मुअत्तल कर दिया गया। नाजरीन, गुज़िश्ता हफ्ते मज़कूरा PRO संजय शिंदे के खिलाफ एक तालिबान ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि शिंदे ने उसे रात के औकात में हयासोज पैगामात भिजवाए और उससे क़ुर्बतें बढ़ाने की ख्वाहिश जाहिर की। इस शिकायत पर बेगमपुरा पुलिस थाना में मामला दर्ज किया गया था। बाद अज़ां शिंदे की मुअत्तली का मुतालबा करते हुए तलबा तंजीमें, युवा सेना, विद्यार्थी सेना, ABVP और रिपब्लिकन विद्यार्थी सेना भी मुश्तइल हो उठी थी, जिसके बरबिना पुलिस में की गई शिकायत ही को बुनियाद बनाकर यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने आखिरकार गुज़िश्ता रोज सनीचर को यूनिवर्सिटी के राब्ता आम्मा के ऑफिसर शिंदे को मुअत्तल कर दिया। ताहम तलबा व उनकी तंजीमों का कहना है कि क्या एक तालिबा से इस तरह की बेहयाई और बदतमीजी करने वाले की सजा सिर्फ उसकी मुअत्तली ही करार पाती है या उसे वाक़अतन करार वाकई सजा देनी चाहिए। शेंद्रा सनती इलाके की हरमन कंपनी के सामने एक दिलखराश हादसे में एक कार ने 2 व्हीलर को जोरदार टक्कर मार दी। मोटरसाइकिल पर सवार एक ज़ईफ़ा हादसे में हलाक हो गई, जबकि मोटरसाइकिल चला रहा शख्स और 2 बच्चे शदीद जख्मी हो गए हैं। महलूक खातून का नाम कचराबाई जाधव बताया जा रहा है। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक अनिल जाधव अपनी मोटरसाइकिल पर अपनी वालिदा और 2 बच्चों के साथ जा रहे थे कि हनुमान चौक पर एक तेज रफ्तार कार ने उन्हें जोर की टक्कर मार दी। हादसा इतना शदीद था कि 4 व्हीलर गाड़ी का स्टीयरिंग खुल गया और 2 व्हीलर गाड़ी तकरीबन 40 फीट हवा में उछलकर डिवाइडर पर आ गिरी। मोटरसाइकिल का भी बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। हादसा होते ही कार का ड्राइवर वहाँ से फरार हो गया। रात काफी हो चुकी थी, इसलिए वहाँ ट्रैफिक कम था, मगर वहाँ जो लोग मौजूद थे उन लोगों ने जख्मियों को इलाज की गर्ज से अस्पताल पहुंचाया, मगर दवाखाना ले जाते वक्त रास्ते में ही अनिल की वालिदा कचराबाई ने दम तोड़ दिया, जबकि अनिल का एक पैर इस हादसे में बेकार हो गया और दोनों बच्चे भी शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं। जख्मी बच्चों में एक 12 साल लड़की और 10 साल लड़का शामिल है, जिनका घाटी दवाखाने में इलाज जारी है। इस ज़मन में चिकलथाना पुलिस से राब्ता कायम करने पर उन्होंने बताया कि 4 व्हीलर गाड़ी का नंबर मिल चुका है, जिसकी मदद से गाड़ी के मालिक की तलाश जारी है और जल्द ही उसे हिरासत में ले लिया जाएगा। बजाजनगर इलाके के रामलीला मैदान से करीब कीमती मोबाइल छीनकर फरार होने वालों को साकिनान ने धर दबोचा और उनकी खूब खातिर करने के बाद उनकी 2 व्हीलर समेत उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया है। नाजरीन, MIDC वालूज पुलिस स्टेशन की हुदूद में गुज़िश्ता कुछ दिनों से जराइम में इजाफा हो गया है। कारखानों में ड्यूटी अंजाम देकर घर लौट रहे लेबर्स, इलाके के साकिनान व खवातीन को रात रोक कर उनके साथ मारपीट करके कीमती अशिया और नकद रकम लूटने की वारदातों में बड़े पैमाने पर इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता 5 सितंबर को भी यहाँ एक वाक़या पेश आया था। वड़गांव कोलाटी गट नंबर 12 के साकिन तानाजी ढोले, जो कि बजाज नगर में मौजूद गजानन हॉस्पिटल में खिदमात अंजाम देते हैं, अपनी ड्यूटी खत्म करके घर लौट रहे थे कि नामालूम लुटेरे उनका मोबाइल छीनकर फरार हो गए। अभी ये वाक़या ताज़ा ही था कि 20 सितंबर को बजाज नगर जय भवानी नगर के साकिन अंकुश निमगांवकर को खाना खाकर लौटते वक्त इन शातिर लुटेरों ने उनका कीमती मोबाइल फोन छीनने की कोशिश की, जिस पर निमगांवकर ने चीख पुकार शुरू कर दी और लुटेरे अपने मंसूबे में नाकाम होकर वहां से फरार हो गए। ये वाक़या रात 8:15 बजे करीब पेश आया। इस वाक़ये के सिर्फ 15 मिनट बाद ही दूसरी वारदात रामलीला मैदान पंचमुखी महादेव मंदिर के सामने पेश गई। विशाल उदार नामी शख्स शिवाजी स्मारक की तरफ जा रहे थे कि मोबाइल चोरों ने उनका हैंडसेट छीनने की कोशिश की, मगर वहां मौजूद शहरियान ने दौड़कर उन्हें पकड़ लिया और उन्हें खूब खबर लेने के बाद पुलिस के सिपुर्द कर दिया। इस मामले में शहरियान ने इन लुटेरों के कब्जे से एक मसरूका मोबाइल और मोटरसाइकिल पुलिस के सिपुर्द की। ये मामला MIDC वालूज पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। मजीद तहकीकात पुलिस कर रही है। अपने मसाइल की जानिब हुकूमत की तवज्जो मबजूल करवाने के लिए एक नौजवान किसान ने अपने ही सर को जख्मी कर लिया। पुलिस ने उसे पकड़कर ज़बरदस्ती गाड़ी पर बिठाया। दूसरी जानिब पुलिस कार्रवाई का वीडियो वायरल हो जाने से हुकूमत व इंतज़ामिया और पुलिस महकमे की कार्रवाई व कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगते दिखाई दे रहे हैं। मंजूर होत नाही यांच्याकडनं। महिनाभर शेतकरी परेशान होतो। तुम्ही शेतकऱ्याला समजता काय? फाशी लावू नका। बोलू द्या। बोलू तर द्या राव।
नाही सर मला बोलू द्या मॅडम सोबत सर एक मिनिट नाही सर नाही शेतकऱ्यांना त्रास देता सर शेतकऱ्याला नाही सर. नाजरीन, खबरें खत्म करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हम वतन भाइयों में इस्लाम से मुताल्लिक़ पैदाशुदा गलतफहमियाँ दूर करने के लिए बंदगान तौहीद कुरान व अहादीस की रोशनी में गुजारें अपनी जिंदगियाँ। शाहगंज इलाके में मौजूद मदीना मार्केट के पार्किंग शेड में तामीर की गई दुकानें की गई मुनहदिम। बॉम्बे हाई कोर्ट के हुक्म और म्यूनसिपल कमिश्नर की हिदायत पर की गई कार्रवाई। तारीखी सलीम अली तालाब में छोड़े जा रहे ड्रेनेज के गलीज पानी से तालाब का वजूद खतरे में। गंदगी के सबब मछलियों को भी पहुंच रहा है नुकसान। और शेंद्रा MIDC रोड पर पेश आया दिलखराश हादसा। एक तेज रफ्तार कार की जद में मोटरसाइकिल आ जाने के सबब ज़ईफ खातून की जगह पर ही मौत वाक़ई। इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। ज़की सिद्दीकी को दीजिए इजाज़त। कल फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।